and I'm honored to be a member of the Education and Training Department of the Medicine Interest Group, the society proudly organizing this webinar as part of our ongoing efforts to guide and support medical students in exploring global career opportunities and professional development pathways. The purpose of MBBS Beyond Borders is to help students gain clarity from international medical pathways and learn directly from doctors who have successfully navigated these journeys themselves. Today's session is particularly valuable for students interested in pursuing medical careers in Saudi, as we will be discussing the SMLE pathway. It is a true privilege to introduce our esteemed guest speaker, Dr. Salman Rashid, Medical Director in Medina, founder and CEO, SMLE Guide Academy. He has successfully cleared multiple international licensing exams, including SMLE, MRCP Part 1 and 2, DHA, and NLE, and actively mentors doctors preparing for licensing exams across the Gulf region. We are deeply honored to have him with us today. Sir, the virtual stage is all yours. Assalamu alaikum warahmatullah. Guys, am I audible? Yes, sir. Thank you so very much. Jazakallah khair. I don't know earlier किसी ने सुना या नहीं सुना. So let me start again. And सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Those who have invited me. I will try to speak more in Urdu because कि हम ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ समझ आ जाए कि उनको बेनिफिशियल रहे उनके लिए. एंड सबसे पहले आप सब टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया और आप सब लोगों की मेहनत अभी से नज़र आ रही है कि जिस तरह आप लोगों ने एक सेमिनार को कंडक्ट किया और सबके लिए और अल्लाह पाक इस चीज़ में आपके लिए बरकत दे और आगे आप सबको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिले. सो बिफोर आई कंटिन्यू तो this is myself, Dr. Salman Rashid. I'm a medical director in Saudi Arabia, in Medina Munawwara especially. I finished my MBBS in 2019 from China. And then एक लंबा process आप सब लोगों को पता है कि foreign graduate they should write a PMDC exam in order to practice in Pakistan. So I wrote that and उसके बाद MRCP, SMLE and so on और other चीज़ें जो साथ-साथ ज़िंदगी में चलती रहीं। आज का अगर ये हम सेमिनार में अगर हम सब लोग गैदर्ड हुए हैं, तो एक चीज़ आप सब लोग रखिएगा कहीं न कहीं हम सब एक-दूसरे से सिर्फ़ सीखें। हाँ, एक करियर जेलसी ज़रूर आती है कि यार वो फलाँ लड़का ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई सऊदीया में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी बेहतरीन कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ। अगर सब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएँगे, तो पाकिस्तान के पेशेंट्स का क्या होगा? सो इस वक़्त आप लोग जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और कल जब आप कुछ करेंगे, तो इससे भी बेहतर करेंगे। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना ना ही किसी का करियर देखकर आपने जेलसी करनी है कि यार वो जो उसके प्लेट में है वो मेरी प्लेट में आ जाए। सो हम में से सब ने कहीं न कहीं कुछ मेहनत की है और आप भी कर रहे हो और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह एक वक़्त आएगा यू गाइज़ विल अचीव मैनी मोर इंशाअल्लाह। सो कैन वी चेंज स्लाइड? Or can I share my screen here? Uh, I think admins. Guys, can I share my screen? या आप लोग Yes, अगर sir. Sir, ओके, you can share your screen and we will handle that. ओके. So my screen is visible for everyone, right? Yes, sir. ठीक है.
So, let's begin. Actually, I'm born in Saudi Arabia, raised in Saudi Arabia, but the main thing is कि मेरे roots still पाकिस्तान से हैं और I'm proudly पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह. कहीं पर भी हम चले जाएं तो हम पाकिस्तानी सबसे पहले होंगे. Alhamdulillah, I've been working here as a medical director. I founded this academy named SMLE Guide, and more than 800 doctors they have passed from our academy with the passing ratio of 90 to 95%. एंड इसके साथ साथ सिर्फ कोशिश ये नहीं की कि सिर्फ करियर ग्रो करें हेल्थ में, तो हमने कोशिश की कि हम हेल्थ से बाहर थोड़ा सा निकलें. एंड आई फाउंडेड दिस रेस्टोरेंट नेम्ड डॉक्टर्स लाउंज कैफ़े. ये मुल्तान में है. एंड टैग लाइन सबके लिए है कि अ प्लेस फॉर हीलिंग माइंड्स. Again, I told you guys ke MBBS I finished from China. MRCP, Alhamdulillah, all parts are passed now, and NRE and SMLE and so on. Those who are new here, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आई स्टडीड इन चाइना फॉर 5 years. और उसके बाद आई केम बैक टू सऊदी अरेबिया. एंड देन द जर्नी टोटली चेंज्ड फॉर मी. जर्नी किस तरह से चेंज हुई कि मामलात पाकिस्तान के और थे, सऊदी अरेबिया के और थे. एंड क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में ही बोर्न एंड रेज्ड हुआ, तो मुझे आकर इन दी एंड प्रैक्टिस सऊदीया में ही करनी थी. तब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था. जैसे अभी ये माशाल्लाह आप लोगों ने वेबिनार किए हुए हैं सारे स्टूडेंट्स को. एक अभी आप 4th ईयर 5th ईयर में हैं और आप लोगों के पास एक चांस है to get the information. And right now you guys have internet, Instagram, everything, कि आप कहीं पर भी कुछ सर्च करें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. बैक देन इन 2019 या 2013 2014 इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन उस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते थे, ना ही हमें कभी किसी ने उस तरह से समझाया कि यार ये चीज़ें भी आप लोग ज़िंदगी में कर सकते हो. खैर, अब सबसे पहले जो एसएमएलई एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है? तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए? आप नोट डाउन कर लें. पहली जो मेन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपका एमबीबीएस की डिग्री, ठीक है? एमबीबीएस डिग्री. अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन्स और रेज़ होंगे कि सर क्या अटेस्टेड डिग्री चाहिए? क्या उसको हमने मुसद्दिक़ा करवा लें या फिर फ़ॉरेन एम्बेसी से अटेस्ट करवाएँ? नहीं, कुछ भी फ़िलहाल नहीं करना. ऑल यू गाइज़ नीड एमबीबीएस डिग्री, ठीक है? उसके साथ आपको चाहिए एमबीबीएस की मार्कशीट, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं. ऑल ईयर्स मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है जिसके अंदर सारे 5 ईयर के आपके मार्क्स उस पे मेंशन्ड होते हैं. Then you need 1 year of house job work experience. Again, your 1 year of house job work experience, students they get confused. They consider that the 1 year house job experience count as a work experience. No, it is an internship where you have where you are working as an intern doctors under the supervision of medical officers, GPs and consultants and so on. So that is your internship. वहाँ पर you are practicing कि किस तरह से आपने एज अ जीपी आगे काम करना है. सो 1 year ऑफ इंटर्नशिप यू मे रिक्वायर्ड. एंड देन यू नीड 1 year ऑफ रीसेंट क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस. लेट्स से आपकी इंटर्नशिप फिनिश होती है 2024 में, ठीक है, या 2025 में, या अभी 2026 चल रहा है, मई मंथ चल रहा है. तो आपके पास पिछले साल मई 2025 से मई 2026 तक का वर्क एक्सपीरियंस लाजिम होना चाहिए. एंड देन आपका पीएमडीसी वो लाइसेंस कंप्लीट लाइसेंस हो और रिन्यूड लाइसेंस होना चाहिए. I repeat, 4 to 5 documents are important. Number one, MBBS degree, mark sheet, internship, 1 year of work experience, PMDC license, and again our passport also. अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना बनवाएं और पासपोर्ट लाजिम चाहिए. उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है इसका? हम डायरेक्टली एग्जाम नहीं लिख सकते सऊदी अरेबिया का. इफ़ वी कंपेयर अदर एग्जाम्स जैसे कि दुबई का है, तो वो क्या कहते हैं कि आप प्रोमेट्रिक में जाके एग्जाम स्केड्यूल करें. वंस यू पास द एग्जाम देन यू डू योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सो ऑन. बट इन सऊदी अरेबिया you need to
verify your documents first. Now, from where you need to verify your documents? Your documents should be attested and verified from their third company. They name it as data flow. ठीक है? Dataflow is the company. They are responsible for the verification of documents, and Saudi Council only accept the documents verified from Dataflow only, no third parties. Okay, you need to submit all your documents which I mentioned here above. You need to upload them on Dataflow, and then you need to pay the fees, which I will later on tell you कि कितने पैसे लगेंगे. Once your Dataflow report comes as positive, और पॉजिटिव है, आपने फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप उठाना है, सऊदी काउंसिल एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं मुमारिस प्लस. अब जैसे पीएमडीसी का पोर्टल अपना है, पीएमडीसी का, और जीसीसी का है, गल्फ का है, सबका अपना अपना पोर्टल है. तो सऊदी काउंसिल का अपना एक पोर्टल है जिसको हम कहते हैं मुमारिस प्लस. अगर आप गूगल करेंगे आपको मुमारिस प्लस भी मिल जाएगा. ठीक है, ऊपर वाली जो डाटा फ्लो की रिपोर्ट होगी वो आपने फिर मुमारिस में एप्लीकेशन डालनी है. यू नीड टू अप्लाई फॉर जनरल, अगर आप जनरल फिजिशियन का एग्जाम लिख रहे हैं, यू नीड टू अप्लाई फॉर अ जनरल फिजिशियन रैंक. Then once you applied your document for eligibility, then 3 to 7 days you get the approval. If not, they will return your application and they tell you the reason why they have returned your application. Then for successful application you get the eligibility, then they give you 1 year of time period. Now 1 year of time period is like what? For example, I got my eligibility on 9th May 2026. So my eligibility will expired on 9th May 2027. So I have this 1 year window, this year window to write SMLE exam. In this 1 year, I have three chances, थ्री अटेम्प्ट्स टू पास. एक साल के अंदर 3 बार मुझे चांस मिलेगा टू राइट द एग्जाम, मतलब मेरे पास टोटल 3 अटेम्प्ट्स हैं. दिस एग्जाम कंडक्ट्स एवरी मंथ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर. मई में भी एग्जाम हो रहा है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी, हर महीने एग्जाम हो रहा है. अगर आपने पहला अटेम्प्ट आपका फेल हो गया, ठीक है, इस एक साल के अंदर, देन आप दूसरा अटेम्प्ट लिख सकते हैं. अभी भी एलिजिबिलिटी खत्म नहीं हुई. दूसरा भी फेल हो गया खुदा ना ख्वास्ता, तीसरा लास्ट चांस आप लिख सकते हो. अगर तो ये तीसरा चांस आपने ज़ाया कर दिया, हो गया ख़त्म, उसमें भी पास नहीं हुआ, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी. फिर आप दोबारा ना ही इस एलिजिबिलिटी को रिन्यू करवा सकते हैं, ना ही री अप्लाई कर सकते हैं फॉर 1 होल ईयर. यानी कि 9th May 2028 को आप एलिजिबल होंगे टू सबमिट योर एप्लीकेशन अगेन. अब इस डेट को आपको अगेन रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा फ्रॉम 2027 टिल 2028. तो ये एक साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको दोबारा सऊदी काउंसिल में अप्लाई करना होगा. सो अगर आप एक दफ़ा एलिजिबल हो गए हैं टू राइट द एग्जाम, जस्ट अ सेकंड गाइस. अगर आप एक दफ़ा एलिजिबल हो गए हैं टू राइट द एग्ज़ाम, सो आप उसी एक ईयर की विंडो के अंदर अपने फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट के अंदर अंदर एसएमएलई एग्ज़ाम पास कर लें, और फिर आपके नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन का? एसएमएलई एग्ज़ाम पहले, अगर वी टॉक 2013, 2014, 2015 या 2021 तक, ये एग्ज़ाम बहुत इजी एग्ज़ाम हुआ करता था. माना जाता था कि यार ठीक है, आप प्रीवियस रिकॉल्स कर लो, आप यहाँ से पढ़ लो, आप वहाँ से पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम पास. बट नाउ सिंस सऊदी अरेबिया इज़ डेवलपिंग माशाल्लाह, सो इन्होंने अपने हर सेक्टर को इतना इम्प्रूव किया है कि अब इनकी जो प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है या फिर एग्ज़ाम इन्होंने कंपैटिबल कर दिया है एज डिफ़िकल्ट एज यूएसएमएलई, यूके, एमआरसीपी एग्ज़ाम. अगर आपने इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स को अच्छे से किया है तो आपका एमआरसीपी भी निकल सकता है, यूएसएमएलई का पार्ट 1 भी निकल सकता है, और प्लैब का भी पार्ट 1 निकल सकता है. ठीक है, जो 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हम लोगों ने फोकस करना होता है टू प्रिपेयर फॉर एसएमएलए एग्जाम, दे आर इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक सर्जरी
ethics, professionalism and community medicine. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी बुक्स कौन से होने चाहिए हमारे पास। इस वक्त जो यूनिवर्सिटी लेवल में आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप फोर्थ ईयर हैं, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यही जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, तो यही बुक्स आपके लिए मोर देन इनफ हैं। ठीक है, कहीं यहाँ वहाँ से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल बुक आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे हैरिसन हो गई या सर्जरी के लिए है, तो वो बुक से आप रेफरेंस ले सकते हैं। बट ये 5 सब्जेक्ट्स आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, बिकॉज़ इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में से आपका एग्ज़ाम होता है एसएमएलई का। ठीक है? फिर आती है प्रिपरेशन के ऊपर चीज़ें। प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली हर इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो खुद से प्रिपेयर करे, एक ऑप्शन होता है कि वो किसी अकेडमी को जॉइन कर ले और वहाँ से प्रिपरेशन करवा ले। अगर आप खुद अकेडमी सॉरी नहीं जॉइन करना चाहते, आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो मोस्ट बेनिफिशियल इज़ फॉर यू कि जो आपको अच्छा लगे कि यार मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं वही चीज़ करूँ। अगर आप ये अबव सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके अच्छे से टॉपिक वाइज़ सारा कुछ, तो आप सेल्फ स्टडी करें। अगर आप चाहते हैं कोई अकेडमी जॉइन करें, तो ऑब्वियसली आवर अकेडमी इज़ देयर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू पास द एग्ज़ाम एंड सो ऑन। उसके बाद आपका जब आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपका आखिरी स्टेप आता है टू बुक योर एग्ज़ाम ऑन प्रोमेट्रिक वेबसाइट। प्रोमेट्रिक की वेबसाइट प्रो स्केड्यूल करके गूगल कर सकते हैं आप प्रोमेट्रिक वेबसाइट को। वहाँ पर जो आपने एलिजिबिलिटी ली थी फर्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी ली थी आपने, वो एलिजिबिलिटी आपने पुट करनी है प्रोमेट्रिक वेबसाइट पर। ठीक है, एंड विद योर नेम। देन आप वहाँ से एग्ज़ाम स्केड्यूल करेंगे एंड देन आप एग्ज़ाम लिखेंगे। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना बड़ा होता है। ठीक है, क्या हार्ड है, कैसे है। एग्ज़ाम एक्चुअली 4.5 आवर का है, यानी कि 4.5 घंटों का। 4 घंटे 30 मिनट, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है एसएमएलई का। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, नॉट 1 पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पोर्शन विल बी अ डिफिकल्ट वन, where candidates will be tested with internal medicine, OBG, and some ethical MCQs. And you guys have like in 120 minutes, पहले पार्ट में 120 मिनट्स में आपको 110 MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं। ये टाइमर आपका ऊपर लगा हुआ होता है। जब आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है, देन यू हैव ऑप्शनल ब्रेक 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की, इफ यू वांट टू टेक इट। देन सेकंड पार्ट आप आकर एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और सेकंड पोर्शन में अगेन 110 एमसीक्यूज। सो ये कभी कभार वो 220 एमसीक्यूज देते हैं, कभी वो 210 एमसीक्यूज देते हैं, बट होती इनकी इतने ही है। आफ्टर पासिंग द एग्जाम, अब आपके पास में एक मेन चीज आती है कि अब क्या करना है। Now you have SMLE license with you. Now you have passed your exam. Now you can apply for the jobs in Saudi Arabia. अब how you can apply jobs in Saudi Arabia? देखें, let me talk very practically with you all. I don't want to give you any false hope कि यार मुझसे कोई स्टूडेंट मुतासिर होकर कहे कि यार मैं एसएमएलई का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ तो मैं मुझे फ़ौरन ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी। नहीं, अब ऑनलाइन जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। जिस तरह यूके का एग्ज़ाम पास करके आपको यूके जाकर जॉब हंट करना होता है, इसी तरह सऊदी अरेबिया का भी मेन चीज़ यही हो चुकी है कि आपने एग्ज़ाम पास किया। अगर आपका कोई सऊदी अरेबिया में है दोस्त, भाई, चाचू, जान पहचान वाला, वो अगर आपको हेल्प कर दें फॉर अ वर्क वीज़ा, तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप अपना वर्क वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में आएँ एंड देन आप हॉस्पिटल्स को विज़िट करें, डिफरेंट क्लिनिक्स को विज़िट करें, अपनी सीवीज़ दें और फिर आपकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। बट अगर आप ऑनलाइन जॉब हंट करना चाहते हैं, तो मैनी कंसल्टेंसीज़ आर देयर इन पाकिस्तान। लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद, कराची। बट अगेन वही चीज़ है कि आप किसी पर यकीन उस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपका कॉल है, आपका एक्ट है कि क्या करना है उस पे। मैं मशवरा ये देता हूँ कि पहले आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें। अब ऑनलाइन जॉब्स के लिए आजकल जो सबसे सेफेस्ट एंड बेस्ट अप्रोच है वो है नेशनल गार्ड। आफ्टर पासिंग द एग्जाम,
आप नेशनल गार्ड में डायरेक्ट वेबसाइट इनकी ओपन करें, वहाँ पर इनका पोर्टल है, वहाँ पर अपने सीवी दें। सीवी के साथ-साथ आप बीएलएस, एटीएलएस इसके कोर्सेज़ भी आपके हों, आपके पास ये सर्टिफ़िकेट्स भी हों, ये अटैच करके आप नेशनल गार्ड में अप्लाई कर दें और उनके हर साल जॉब ओपनिंग्स ओपन होती हैं और ये जीपी ट्रेनिंग को लेते भी हैं एंड दे पे वेरी गुड सैलरी। दो इट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेशनल गार्ड बट आप कंसिडर एज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉयी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं विद गुड बेनिफिट, गुड एकोमोडेशन एंड सो ऑन। अगर अल्लाह चाहे, ज़रूर चाहे इंशाल्लाह, तो आपकी जॉब ऑनलाइन बैठे भी मिल सकती है आपको नेशनल गार्ड में या किसी और हॉस्पिटल या क्लिनिक में। अगर नहीं, तो चांसेस आर देयर कि आप अपना वर्क वीज़ा लें और वापस सऊदी अरेबिया में आएँ और यहाँ पर जॉब हंट करें। 70 टू 80% चांसेस होते हैं लाइव जब आप सीवी अपनी पुट करते हैं, इन पर्सन सीवी पुट करते हैं विद वैलिड इकामा वर्क वीज़ा, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं 72% टू 70 टू 80% टू गेट द जॉब। इफ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो 30 चांसेस होते हैं आपके। अब इसमें हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि यार प्रिपरेशन कितनी करनी होती है आपने इसमें। देखें, आइडियली यू नीड 2.5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसएमएलई एग्जाम, ठीक है? अगर हम पहला स्टेप कर लें या फिर टोटल हम टाइम काउंट कर लें कि यार कितने अरसे में हम ना ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो है, जैसे हमने कहा था कि डाटा फ्लो की वेरिफिकेशन होगी। डाटा फ्लो की वेरिफिकेशन गाइस 20 टू 30 डेज़ लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अगर उन्होंने कोई एप्लीकेशन रिटर्न की कि कोई फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये 20 टू 30 डेज़ जो हैं वो प्लस हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएँगे 35 डेज़ या 40 डेज़ में अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसिंग है। सो आप 20 से 30 दिन तो अपने ले लें कि यार मेरे डाटा फ्लो में लग रहे हैं, यानी कि 1 महीना लग रहा है। सऊदी काउंसिल टेक 3 टू 7 डेज़ यानी कि 1 मंथ एंड 7 डेज़ हो गए आपके। फिर उसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम होता है टू राइट द एग्ज़ाम आफ्टर एलिजिबिलिटी। इसी जब आपने अप्लाई कर चुके हैं डाटा फ्लो 30 डेज़ आप पहले दिन से अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दें, यानी कि 1.5 मंथ के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, 1 यानी कि 1 महीने के अंदर-अंदर एलिजिबिलिटी भी आ गई है एंड स्टिल यू हैव 1 एंड हाफ मंथ लेफ्ट इन योर प्रिपरेशन टाइम। तो उसको कंप्लीट करके आपने 2.5 महीने की एक विंडो के अंदर अपना एसएमएलई का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आप अपनी जॉब देखें 2 महीने तक बैठ के, यानी कि टोटल 5 महीने का टाइम हो गया कि यार जॉब पाकिस्तान में नहीं मिली, तो अगर कोई जानने वाला है जो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो आप सऊदीया में जाकर, यानी कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मंथ्स टू 7 मंथ प्रोसेस कि आप कितनी जल्दी सऊदी अरेबिया में लैंड कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 टू 7 मंथ का एक आपका प्रोसेस हो सकता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द कॉस्ट। पहली चीज़ यार, यहाँ पर ही एक चीज़ याद रख लेना आप, एंड आई वांट एवरीवन टू बी विद मी हियर बिकॉज़ दिस थिंग विल चेंज आवर माइंडसेट, ठीक है? अ, admins, is it okay if I ask questions from participants कि वो chat में लिख सकें? Yes, sure, sir. There will be Okay. a question and answer. या नहीं, अभी एक चीज़ बस इस सिनेरियो के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, हम पाकिस्तान से बाहर मूव किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं? एक ही चीज़ के लिए हम करना चाहते हैं कि अच्छा पैसे मिल जाएँ, ठीक है? अब मैं कहता हूँ तुम लोगों को कि मैं कमा रहा हूँ 7,000 रियाल सऊदी महीने का। तुम लोग क्या करोगे? 7,000 को मल्टीप्लाई करोगे पाकिस्तान से, 75 पे मल्टीप्लाई किया, ये बनता है 5,25,000 पीकेआर, ठीक है? अब इस 5,25,000 पीकेआर को सुनते ही मेरे मुँह से पानी आना शुरू हो गया कि यार वाओ! 5.5 लाख की मुझे सैलरी मिल रही है, राइट? मिल रही है कि नहीं मिल रही? इफ येस, रेज़ योर हैंड। मैंने सबसे पहले हिसाब लगाया, एक को पाकिस्तानी रुपीज़ से कन्वर्ट करके बड़ा खुश हो गया यार, 5 लाख, 6 लाख, खुशी हुई। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जिस मुल्क में जाना चाह रहे हो उस मुल्क में लगाओ, इन्वेस्ट करो। तो आप लोग कहोगे
नहीं यार, वो हम पीकेआर में कैसे करें, हमारे तो हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वहां पर आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, दिल टूट जाता है। तो वो चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि यार मेरे फाइनल इनकम में अगर वो सऊदी रियाल में मुझे अर्न करनी है, तो आई नीड टू स्पेंड मनी इन सऊदी रियाल्स। आई कैन नॉट स्पेंड पीकेआर एंड एक्सपेक्ट टू अर्न इन सऊदी रियाल्स। ठीक है। कहीं पर आप बिजनेस करें, उसी करेंसी में आप इन्वेस्ट करें, उसी करेंसी में आपको वापस मिलेगा। अगर तो ये माइंडसेट है आपका कि नहीं, मैंने पीकेआर से एसएआर में जाना है, या पीकेआर से यूएस डॉलर्स में जाना है, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में जाना है, तो इन्वेस्ट भी आपने वैसे करना है। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे आगे के लिए। ये एक फ्रेंडली एडवाइस मैंने आपको की है। डेटा फ्लो की जो वेरिफिकेशन आपको लगती है, वो लगती है 900 रियाल से लेके 1200 रियाल तक। सही है। 900 रियाल मींस 900 रियाल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो हो जाते हैं। अगर एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है वो उसका वो 300 रियाल मजीद लेता है, तो 900 टू 1200 रियाल आपका सऊदी लगता है सिर्फ डाटा फ्लो वेरिफिकेशन में। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तानी 90,000 पीकेआर आपकी डाटा फ्लो वेरिफिकेशन में चला गया। देन सऊदी काउंसिल की एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रियाल एप्लीकेशन एंड 1220 रियाल फॉर एलिजिबिलिटी। तो 1420 इन 275 अगेन 1,06,000 रुपये बनता है, और प्लस 90,000 पीकेआर तो आपके 1,96,000 हो गए। फिर 90,000 का एग्जाम है, प्रोमेट्रिक एग्जाम, $289। तो ये आपका प्रॉपर एक्स एक्स यानी कि 3 लाख रुपए तक आपका पूरा कॉस्ट जा सकता है। ये मैंने आपको लमसम बताया है। डाटा फ्लो वेरिफिकेशन विल कॉस्ट यू अराउंड 900 टू 1200 रियाल। Saudi Council from 200 रियाल एप्लीकेशन फीस, 1220 रियाल एलिजिबिलिटी फीस, एग्जाम प्रोमेट्रिक फीस इज $289। ये आपका टोटल खर्चा है एसएमएलई की कॉस्ट। प्रिपरेशन फीस आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू जॉइन एकेडमी। अगर नहीं करना तो ये तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखना है कि ये तीन चीज़ें मेरी कॉस्ट करेंगी। उसके बाद आपके मैंने वो अटेम्प्ट्स पर बात की थी कि कितने अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। यू आर अलाउड ओनली थ्री अटेम्प्ट्स। एक सेकंड गाइस बस। Only 3 attempts to pass the SMLE exam, and these 3 attempts must be used within 1 year of eligibility period that is granted by Saudi Commission. And if you do not write or pass the exam within this 1 year window, your eligibility expires and you will have to wait another full year to reapply. So make sure you book and take the exam within the validity period. And if you are looking to pass or aiming to pass SMLE exam in your first attempt, we are always there to help you out. ठीक है। Now recommended time for the preparation is around 2.5 months to 3 months of focused study. You need to adjust your routine and clinical practice. Uh, I already explained our MCQs, no, sorry, books. And now let me recommend some study resources for you. These three resources are very important for SMLE exam. First book is Master the Boards, which you can get from any bookshop in Pakistan. Master the Boards, and it's a very good book actually. Then USMLE First Aid, Step 2 CK, and Toronto Notes. These three books are equally important for passing SMLE exam if you want to do self study. But for those who want to join academy, they can join our academy where we provide lectures, mock exams, daily MCQs, quizzes, live guidance, and so on. So ये सारे मामलात हैं। एक और चीज़ बस इस पर हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स के ऊपर। ठीक है। जो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान और हम सब डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं कि क्या हमें ये एग्ज़ाम लिखकर बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या-क्या हर्डल्स हमें आ सकते हैं। देखें, कोई भी एग्ज़ाम अगर हम पास करते हैं तो वो फ़ौरन आपको आउटकम नहीं देता, ठीक है? हर एग्ज़ाम
आपको एक वक्त देना पड़ता है हर एग्जाम के लिए। भले वो एसएमएलई का एग्जाम हो, भले वो कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम पास करके अगर आपने बाहर प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं बहुत जगहों पर आपको एक आएगा कि यार शुड आई क्विट दिस, कि मैं क्विट कर दूं, मैंने इतना प्रेशर भी झेला है फैमिली से, सोसाइटी से, लोगों ने मुझे कंपेयर भी किया है, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे किए हैं, अभी भी सारा कुछ कर लिया है, तो मैं क्या करूं आगे, क्या मुझे क्विट कर लेना चाहिए? तो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि नहीं, क्विट नहीं करना। आप लोगों ने मेहनत करनी है। एक इतना महंगा एग्जाम अगर आप लोग लिख चुके हो, ठीक है, तो आप लोगों को अपना 110% उसको देना ही देना है कि यार मैंने एक दफ़ा एक चीज़ मैंने लिख ली है, कर ली है, तो मैं इसको अपना 110% लाजिम दूंगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद तवक्कुल, फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए, कि जितना आपका अल्लाह के ऊपर ईमान है, यकीन है, उतना ही आप आगे कामयाब हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ में आपने तवक्कुल करना है और अपने आप को सिर्फ़ ये याद दिलवाते रहना है कि अल्लाह पाक ने ये जो मुझे अपॉर्च्युनिटी दी है या एग्ज़ाम पास करवाया या लिखवाया है, देयर इज़ सम रीज़न, और इंशाअल्लाह बिइज़निल्लाह मैं इस चीज़ को ज़रूर अचीव करूँगा। और इस एग्ज़ाम के लिए ये नहीं कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं सोलो ही ठीक हूँ, मैं खुद ही ये सारा कुछ ना हैंडल कर लूँगा। कोशिश करें उन दोस्तों को, उन भाइयों को कॉन्टैक्ट करें, रीच में रहें उनके साथ जिन्होंने ऑलरेडी एसएमएलई एग्ज़ाम पास किया हुआ हो। अगेन पॉज़िटिव लोगों के साथ रहकर, के जो एसएमएलई का एग्ज़ाम पास करके जिन्होंने इस वक़्त जॉब कर रहे हैं, उनके साथ ट्राई टू फ्रेंड्स विद देम, कि यार वो आपको सही रियल इनसाइट बताते रहेंगे, और जहाँ पे कोई हर्डल होगी वो आपको मदद भी करेंगे और आपकी मेंटरशिप भी करेंगे, ताकि आप एक सुकून से आप अपना एग्ज़ाम लिखो और आगे अपनी ज़िंदगी का जो भी आपने फ़ैसला करना है। अगेन वही एक चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर कहीं पे आपको लगे कि यार नहीं हो रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह पाक सबका राज़िक है और अल्लाह पाक आपको भी र रिज़्क देगा इंशाअल्लाह बिइज़निल्लाह। एक चीज़ और इसमें हमने देखनी है कि यार देयर आर सम एथिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सऊदी अरेबिया, ठीक है? तो ज़्यादातर तो कोई कल्चरल डिफरेंस मुझे फेस करने को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलॉन्ग टू अ मुस्लिम फैमिली, बापर्दा फैमिली। तो जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो ज़्यादातर हिजाब और ये इन चीज़ों को ये ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। मॉडेस्टी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और हमारी जो डेली लाइफ जैसे हमारी पाकिस्तान में चल रही है कि हम माशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम एनवायरनमेंट है। लेकिन वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत प्रोफ़ेशनली ये लोग काम करते हैं। एक-एक चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेड होती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेड होती है। इवन फ्रॉम पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू इश्यू अ प्रिस्क्रिप्शन, टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेशेंट, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। पेपर बहुत मिनिमम हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन, एंड हर एक-एक चीज़ आपकी प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है? और आपको हमेशा एक गाइडलाइन वो बता देते हैं जिस गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है। देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ माय रेस्टोरेंट, अगर कभी मुल्तान जाना हुआ तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड दैट के बहुत ज़िंदगी में ना बहुत दफ़ा आपको ये क्विट करने का वो मिलेगा ऑप्शन, और ये बहुत ईज़ी ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ईज़ी ऑप्शन है। लेकिन सबसे मुश्किल ऑप्शन वो होता है कि आप गेम में रहकर गेम का मज़ा भी लें, हारें भी सही, और बार-बार अपनी बारी का इंतज़ार भी करें कि यार मैं एक दिन मैं जीत भी सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं बहुत जल्दी हार मान लूँ या फिर बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर निकल लूँ, क्विट कर लूँ, तो ये माइंडसेट चेंज करें।
अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एंड इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक सबका राज़िक है, सबका राज़िक है, और वो आपको भी रिज़्क ज़रूर ज़रूर देगा। और जिस तरह आसमान पे परिंदे जाते हैं डेली और वो रिज़्क लेकर आते हैं अपना, कभी कोई भूखा नहीं वापस आता, उस तरह से हमें भी रिज़्क मिलेगा। ठीक है? Stay in the game, guys. Trust the process and never underestimate the power of tawakkul. And thank you so very much, guys. This is my time. And if there is anything you guys want to ask, or should I read the comments and answer you? Once again, thank you so much, Dr. Salman. Your words have provided immense clarity for us. I would now like to Jazakallah. pass the mic to Alina Asif for the question and answer section. Thank you once again. Welcome. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I am Alina Asif, a third year MBBS student representing MIG Education and Training Department. Now we will conduct the question answer session without any further delay. If anyone wants to ask any question, please raise your hand. We will unmute your mic and you can ask directly, or you can drop your questions in the chat box and we will ask it for you. Okay. Mm. I think Dr. Hurul N. Okay. Okay. I think I should start from first question because I am confused right now कि किसको पहले आंसर करना है। तो Sir, I have shortlisted the questions. Our first question from the audience is that do we need 1 year post house job experience for SMLE eligibility? yes, definitely we need 1 year, and it should be a recent 1 year of work experience. Okay, thank you, sir. Our next question is, can we apply in person if we are on family visit or Umrah visa? Like, can we apply Uh, like that? yes, you can apply, but they don't prefer and they don't give you job directly because they will ask you to get a work visa, or either you should be on a spouse visa or a work permit, work ikama. So they will not entertain you. They will just take the CV and khalas, they put it on their table, but they will not give you any chance or any benefit of that. Thank you so much for your valuable response, sir. Our next question is that aren't the wages better if we go after becoming a consultant? See, at that time we are not sure कि either you guys are required here anymore or not. क्योंकि वक्त के बाद हमें नहीं पता कि यार वो कंसल्ट अभी जितनी सिचुएशन और सैचुरेशन इधर आ चुकी है, तो जीपीस को भी मुश्किल हो रही है। इवन द कंसल्टेंट दे आर हियर इन सऊदी अरेबिया, दे आर नॉट दैट मच हैप्पी, दे आर सेड लाइक वी आर गेटिंग लेस सैलरीज दिस एंड दैट। सो वी डोंट नो कि नेक्स्ट क्या होगा, बट अगर आप ऑलरेडी इस वक्त करंटली एफसीपीएस के प्रोग्राम में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और या आपका फाइनल एग्जाम बाकी है, then you should complete your FCPS and then you should go to Saudi Arabia as a consultant. Yes, pay scale everything is good, लेकिन कंसल्टेंट बनने बनने तक 40-45 साल की एज हो चुकी होगी। तब तक नहीं पता कि सऊदीज 50+ के डॉक्टर को रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे, जैसे अभी वो 60+ डॉक्टर्स को नहीं रख रहे। Yes, Dr. Hurul, and even still your father is on Iqama, you need a work visa, or at least you need a family Iqama.
Thank you for addressing that so comprehensively. Our next question from the audience is, if someone wants to be a consultant in Saudi Arabia, so he must complete FCPS before going for consultancy seats, or is there anything like that? Uh, if, sorry, I didn't understand. Like, if they want to be a consultant in Saudi Arabia, or like they are already a consultant and coming to Saudi Arabia. No, like they want to be a consultant in Saudi Arabia. No, they prefer only Saudis, and it's very hard to get into residency in Saudi Arabia if you are a foreigner. You need to pass SMLE with 90 plus percentage, then you should have 200 plus volunteer hours, and and the seat where you are competing, there shouldn't be any Saudi competing on it. So they prefer first their own national citizens, and if there is any seat left, then they will look around, and the yearly fees is again 40 to 50,000 Saudi riyals, which you need to pay to the hospital for the training. So my advice is, either you come as a GP, or you should finish your FCPS and then come. Do not think that I go to Saudi Arabia, GP काम करूंगा, वहां पर रेजिडेंसी मिलेगी, वर्क कंसल्टेंट बन जाऊंगा, नहीं होता ऐसा. Thank you for elaborating that point so clearly. Moving forward to next question. Somebody asked your preference that we should do job hunt or spouse visa or work visa. Like, what would you prefer for that? See, if your husband or your spouse is already there, then I prefer spouse visa, because your job security will be on safer side, that you can work on a contract basis with hospital. Like, for whatsoever reason, the hospital, they tell you that they don't want you here, or like you got another good job, so you can easily move to another hospital, and your husband is your kafil, your husband is your sponsor, so he will give you the transfer. But if you are already in hospital sponsorship, and as in work visa, then the transfer fees you need to pay, it's more than 4,000 riyal, and plus other stuff also will be a barrier for you. So my advice is to be with spouse and be on spouse visa. It's beneficial for females especially. That was very informative. Thank you, sir. Can you please guide us about language barrier there? Language barrier, yes, there is language barrier, and you should know at least basic Arabic, because you guys are working in ER, and you might encounter a patient encounter his age is more than 50-year or 60-year old. At that time, you need someone to be there to understand what you are saying in English and what he is saying in Arabic. So it's better at that time आपको अरेबिक आती हो, ताकि आप आगे आपको मसले ना हो, और वो प्रेफरेंस देते हैं. If your Arabic is good, your salary is bit higher. If you don't know any Arabic, then they will exploit you and your salary go down. All right, sir. Our next question is, what's the importance of SMLE if someone wants to return to Pakistan afterwards? um See, SMLE is a licensing exam. So there is no importance in Pakistan for SMLE. Why? Because you are practicing the medicine in Saudi Arabia. So that's why you wrote SMLE exam. So I don't think so there is any importance in Pakistan for finishing SMLE. Thank you, sir. Welcome. Somebody asked that are there any SMLE centers in Pakistan, or we have to move to abroad to take the exam? There are 3 to 4 centers in Pakistan, one in Karachi, Islamabad, and Lahore. 3 centers are there. So you can write the exam in Pakistan. Once you pass it, then you can move.
All right, sir. Does MRCP improve the job hunting process? Do doctors get higher salaries this way? Yeah, definitely. I am a living example of that. I started as a GP, then I finished my MRCP part one, two, and third one, and I got promoted as a registrar. Then I finished 2 years of work experience, and then I promoted to senior registrar. So MRCP does play a vital role. So if you guys if you guys are thinking to move in Saudi Arabia as a GP, then my advice is, okay, finish your MRCP, MRCAM, and other specialty exam, so that after finishing that exams, your rank will be upgraded and your salary will be upgraded too. Thank you for elaborating on that point so clearly. We have another question that are there any scholarships available for training? Yes, there are, but they again prefer local graduates who graduated from Saudi Arabia with more than 95, 96%. So then they give them the chance in residency as well. But if you got very good scores in your university, maybe you pass with gold gold medal, so you can apply directly for government scholarship from government to government. All right, sir. Thank you. Most welcome. Are there any training positions available for non-Saudis teaching hospitals? No, they prefer their own citizens. If there is any position available, they consider consultants on that position. Thank you, sir. Can you tell us about the importance of extra co-curriculars like research, publications, and how many publications should one have for a better chance at getting accepted for residency? See, if you are very good enough in research and publication thing, the chances of you getting a permanent residency are higher, because Saudi Arabia, they just initiated the new rules for doctors and other talented persons. If they did some research, if they are good in something, they can apply for a premium residency. Like you can what you can say कि आप अपने आप को परमानेंट सऊदी समझे, कि अगर आपने रिसर्च अच्छी की है, 3 to 4 रिसर्चेस की हैं आपकी, वो रिसर्चेस पब्लिश भी हो चुकी हैं और यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है, देन आप अपना अप्लाई कर सकते हैं उसमें रेजिडेंसी के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। फिर आपको प्रीमियम रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, एंड फिर आप सऊदीया में भले जॉब करें ना करें, आप परमानेंट सऊदीया में स्टे करेंगे एज अ ग्रीन कार्ड नेशनल। बट अगेन पासपोर्ट आपका चेंज नहीं होगा, पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी रहेगा, बट आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होगा। Thank you, sir. We have another question that if there is very less chance of residency, will I stay as a GP? Sorry, can you please repeat? If there is very less chance of residency, will I stay as a GP? Yeah, you stay as a GP. All right, sir. Our next question is that are the job hunting steps that you mentioned same for other Gulf countries like UAE? Yeah. Yeah, even if we compare UAE with Saudi Arabia, UAE have higher saturation rate than Saudi Arabia. UAE is a bit smaller than Saudi, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चांसेस है। सऊदीया थोड़ा बड़ा है और बड़ी जल्दी जल्दी मिल जाती है। All right, sir. Thank you. Okay, actually, I'm also reading some comments. If you may allow, can I reply them quickly?
Yes, sir, you can reply. Thank you. Okay. Dr. Noor Amir, he says, can someone from Pakistan get surgical residency in KSA? No, brother. They don't give residency to foreigners. If they want to, you need to pass your FCPS all parts, and then you may request them for the training. Then it depend on hospital to give you the training or not. Out of 7,000 Saudi riyals, how much one can save after living expense? It totally depend on you. 7,000 Saudi riyal is a good money, and living expenses is not that much higher if we compare living in a smaller cities just like near Riyadh or any other cities. मैक्सिमम आपका घर भी उनके साथ होता है। सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है जो आपका महीने का 200 से 300 रियाल आ सकता है। उसके बाद खाने-पीने के चार्जेज़ आपके अगर आप सिंगल हो 3-400 ल लगेंगे। मतलब कुल मिला के 2 ढाई हज़ार रियाल आप खा लोगे, 5 साढ़े 5 हज़ार रियाल स्टिल आप सेव कर लोगे। Sir, can we only be a GP there? Yeah, I think I answered. If someone has cleared USMLE Step 1 exam, then the SMLE exam will be exempted or not? No, brother. You need to write SMLE again. Then someone asked, what is the prospect for graduates who have passed USMLE Step 1, Step 2 exams? Dr. Nida, your CV will be updated, your CV will be improved, and they prefer you for jobs, but it's not like कि आपने USMLE किया तो आपको बहुत जल्दी जल्दी वो कोई पोजीशन रैंक के हिसाब से दें. They can prefer you for a GP job. If we are in year 1 or 2 of residency, FCPS year 1, will that count as work experience? Yes, they count as work experience. Sir, it means we can only attain GP job after passing SMLE because residency is difficult for IMG. Yes, definitely, Dr. Ayman. Sir, if we are very fluent in Arabic, is residency still not possible? Exactly not possible because they prefer their own citizens first. इसको यार मैं इस तरह से आपको आसान कर दूं क्योंकि हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। देखें, मैं एक फैमिली मेंबर है, मेरा एक खानदान है, ठीक है? मेरे खानदान के अंदर एक पोजीशन ओपन हुई है कोई भी चीज़ की, तो मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान वाले को प्रेफ़र करूँगा या दूसरी फ़ैमिली को प्रेफ़र करूँगा? ऑब्वियसली मैं पहले अपने लोगों को प्रेफ़र करूँगा ना। तो सऊदी अरेबिया भी ठीक ही कर रहा है। वो सबसे पहले अपने लोगों को, अपने खून को, अपने नेशनल को प्रेफ़र करेगा कि पहले हम इनको कंसल्टेंट सीनियर रजिस्ट्रार बना लें, फिर हम फ़ॉरेनर्स को बनाएँ। सही है? तो ये चीज़ें हमें इस तरह से भी इनको सोचना चाहिए। Opportunity for private sectors, for private practice, if you have 3 million Saudi riyals, then you can open your own clinic. If not, then nearly impossible कि 3 लाख सऊदी रियाल आपके पास होना चाहिए प्रॉपर क्लिनिक सेटअप के लिए. Is it compulsory to do FCPS by giving before giving SMLE? No, it's not compulsory. How many working hours per day? SGB 8 to 10 hours, depend on the clinic. If a Pak national studied in KSA, still cannot do residency there, still cannot. I'm not saying कि नहीं कर सक नहीं मिलती रेजिडेंसी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है टू गेट इनटू रेजिडेंसी। अगर मिल भी जाती है तो साल की 40 to 50,000 सऊदी रियाल्स आपको पे करने होंगे। Do we still need to get a work visa if we already are on Iqama holder? No. You already have a work Iqama. So why would? I have heard that there is uncertainty every year whether the contract will be renewed or not. Uncertainty किस मुल्क में नहीं है? हर मुल्क में है। आज रात को हम सोए हैं, सुबह हमें नहीं पता हम उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। तो अनसर्टेनिटी या इन चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं करें। जो है आज है और अल्लाह पर तवक्कुल रख कर फैसला करें कि अल्लाह पाक मुझे इसमें इस्तिक़ामत और मुझे हौसला दीजिएगा। लोगों का काम है आपको डराना, धमकाना। Sir, if we go there as GP, so it like we will be going to live as a GP lifelong. If you write MRCP, other specialty exams, then your rank will be upgraded. It's not like you are living your life as a GP all the time. After passing all FCPS part, if we want to be surgeon,
there be some age restriction, and if still one wants to be a surgeon, should he go to SMLE path? See, if you pass FCPS and you want to be surgeon, then you need to write SMLE exam for surgery, for surgeon as a senior registrar or as a consultant, depending on your work experience. And then you can work in Saudi Arabia as a surgeon. Dr. Nida, this thing you should contact with your family members. They can help you with that, or any agents who are in Saudi Arabia who give you the work visa and so on. Sir, then we joined the academy by fifth year or during house job. My sincere advice is every time to intern student or academic student that do not join any academy, do not start preparing for licensing exam until unless your goal is to finish USMLE. Why? Because USMLE you can write the exam within third year, fourth year, but for SMLE, I think you should first प्रिपेयर एंड स्ट्रेंथन योर बेस कि आपकी जो बेस है एमबीबीएस की बेस है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ये एमबीबीएस की बेस ही आपने स्ट्रॉन्ग कर ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप हर लाइसेंसिंग एग्जाम पास कर सकते हैं। इफ समवन हैज गुड कनेक्शंस इन यूएई, डू दे हैव बेटर चांसेस फॉर जॉब? यस, रेफरेंस कहीं पर भी है, कनेक्शंस है तो आपको जॉब मिल जाती है। एक्सप्लेन एमआरसीपी रोल एंड द प्रीमियम रेजिडेंसी थिंग अगेन। देखें, एमआरसीपी के ऑल पार्ट्स पास, यू आर जीपी, बट सारे पार्ट्स आपने पास कर लिए, आपका रैंक सीनियर रजिस्ट्रार का हो जाएगा। पहले इस इनिशियली आपका रैंक रजिस्ट्रार का होगा, 2 साल काम करेंगे या 1 साल काम करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, वो रैंक आपका अपग्रेड करके सीनियर रजिस्ट्रार का करेंगे। फिर सीनियर रजिस्ट्रार के बाद आप कंसल्टेंट का रैंक। वंस यू रीच टू द सैलरी ऑफ मिनिमम 30,000 सऊदी रियाल मंथली, तो 6 मंथ तक अगर आपको 30,000 सऊदी रियाल एज अ कंसल्टेंट मिल रहे हैं, तब आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर प्रीमियम रेजिडेंसी, क्योंकि आप ऑलरेडी 30,000 रियाल पर मंथ सैलरी ले रही है। तो फिर आप अपने प्रीमियम रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। Using Saudi to build on self financially and ultimate yes, very good approach, and we recommend students कि आप इस country को, Gulf countries को as a terminal use कर सकते हैं। Come to Saudi Arabia or any other Gulf country, finish your SMLE or other exams, stay here for 1 year, 2 year, get some good bank balance, and then move to other countries. Sir, if we have to pay the hospital during residency, it would be quite expensive. Yes, it would be expensive. Senior registrar salary package would be around 15,000 to 70,000, 17,000 riyal. What is the best way to become a consultant in Saudi? Finish FCPS in Pakistan and then move to Saudi Arabia. That's the bestest pathway. If you go Saudi after house job and become senior registrar there and come back to Pakistan, we have to start from house job here. No, I don't think so. And I'm not sure about Pakistani rules as well. Uh, so admins, if there is anything at my side, please let me know. Thank you so much, sir, for elaborating every point so clearly. With this, we Jazakallah. conclude our question answer session. On behalf of Medicine Interest Group, Education and Training Department, I would like to extend our sincere gratitude to Dr. Salman Rashid for joining us today and sharing such valuable knowledge and experiences with us. Your insights have been truly enlightening and greatly appreciated by everyone present here. I would also Thank you like so to thank much. the audience for their attention and participation throughout the session. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू वंस अगेन। बस एक चीज सब डॉक्टर्स के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी। आज हमारे पास है, कल आपके पास होगा, और डेफिनेटली अल्लाह पाक ने सबको बहुत बेस्ट